एक तो एक बिजनेस करना, ये फर्निशिंग का ही क्यों? तो रंजीत एवेन्यू में शोरूम है तो मतलब लोगों को डर नहीं लगता है, मतलब यहाँ लोग ऐसे सोचते होंगे यार बड़ा महंगा होगा, तो क्या रेंज आप ऑफर करते हो अपने शोरूम में? Welcome to Coffee with BNI Season 2, where friendly talks leads to business opportunities. Good morning guys, my name is Dr. Bikramjit Singh. I'm dentist by profession from Singh Dental Care. I'm your host for Season 2 of Coffee with BNI. I have been accompanied by my co-host, architect Sehajpreet Grover. Welcome ma'am. Thank you, sir. Good morning, BNI. I am architect Sehajpreet Grover from Precision Architects, and my category in BNI is an architect. So today we have Mr. Sajal Gupta from Majestic Homes. Sajal Gupta is a member of Chapter Protector in BNI. He's Chapter Growth Coordinator in his chapter, and he's also the launch ambassador of my chapter, that is BNI Bliss. So welcome, sir. I feel immense pleasure to welcome you in this interview. Hello friends, my name is Sajal Gupta and I am representing my company Majestic Homes and the furnishing studio located in Ranjit Avenue, where we are dealing into all type of soft furnishings. That includes wallpapers, curtains, draperies, wooden flooring, blinds, and also we have many customized solutions according to the client or architect needs, where we are working with one of the finest brands available in India and across the globe. Architect ma'am, please introduce yourself as well. Good morning, everyone. Good morning, BNI. I am architect Sehajpreet Grover from Precision Architects. So our strength lies in that we provide innovative and creative designs. You can save your money by visualizing the things before execution, and most importantly, we will provide you with fully trained laborers who will turn your dream into reality. Signing off as Precision Architects, designing lifestyle that you will love. That's great. So let me introduce myself. My name is Dr. Bikramjit Singh. I'm dental surgeon by profession. I have done my specialization in dental implants. Right now in Amritsar we have 4 dental clinics. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, किडनी ਦਾ डॉक्टर, हार्ट ਦਾ डॉक्टर, लिवर ਦਾ डॉक्टर, उसी तरीके से हमारे क्लिनिक में आरसीटी का डॉक्टर, इम्प्लांट का डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, मींस आई हैव अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट जो कि पेशेंट पे इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करते हैं और उससे हम अपने पेशेंट्स को 100% पेनलेस एक्सपीरियंस देते हैं, जबकि लोगों ने सुना था कि डेंटल ट्रीटमेंट इज वेरी पेनफुल। हमारी यूएसपी ही 100% पेनलेस ट्रीटमेंट है। सो सजल जी, वेलकम यू अगेन। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अ मच कैजुअल वे। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ की स्कूलिंग थी, कैसे बिजनेस में आए? Great. Thanks for the opportunity. And I was born and brought up in Amritsar only. I did my schooling from DAV Public School, Lawrence Road. Then my family wanted me to go out of the town or out of the city for the higher education. So I did my graduation in computer science engineering from MIT University, Noida. And then after that I gained I gained my education and experience over there. But I was adamant on one thing, that I had to join my family business only. So then I came back in my business, and we are having a family business in which we are handling the logistic parts. So we are basically custom house agents, and then I joined my father's business, and later on I also cracked in our business we need to have one license, and I cracked that license in first attempt across the India. Great. And I'm also certified custom house agent licensed by the government of India. Great. बट मेरे को वहाँ तक नहीं रुकना था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अपना एक वेंचर स्टार्ट करूँगा. सो आई स्टार्टेड माय वेंचर, my first new venture in 2013, in which we are doing fabrication of doors and windows, and we were among the first players in the Punjab to launch that product. And after that in 2018 I launched another venture that was related to the window business only, because as in the 4 years of window business we gathered many good we got in touch with many good reputed architects and customers and builders. So I thought why should not give it another next level. So I started with my furnishing business, the very own category which I am representing right now in BNI.
in which I have already told you that we are doing all type of furnishings, soft furnishings. So Okay, as you said before that you have done engineering. yeah. तो आपने ये आपके मन में कैसे आया कि मेरे को बिजनेस यही वाला करना है, फर्निशिंग? लाइक एक तो एक बिजनेस करना, ये फर्निशिंग का ही क्यों? Okay. व्हाट मेक यू थिंक दैट Sure. यू शुड डू दैट? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैसे तो एजुकेशन के बाद मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था, बट क्योंकि मैंने देखा कि एक नया प्रोडक्ट जिसकी नीड है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि काम इंसान को वो प्रोडक्ट से लिंक नहीं करनी चाहिए, उसको कस्टमर के सल्यूशन या प्रॉब्लम्स को अगर हम हल करेंगे, कोई प्रोडक्ट वैसे लेके आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिकता है। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि वुडन प्रोडक्ट्स में काफ़ी परेशानी थी, तो मैंने विंडोज़ एक नई ऑल न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विंडोज़ मैंने लॉन्च करी। तो उससे मेरे को दो रीज़न हुए, एक तो डेफिनेटली मेरा एक नया वेंचर शुरू हो गया, एंड सेकेंडली मेरी वो जो इंजीनियरिंग की वो स्ट्रीक थी वो भी उसमें थोड़ी सी सेटिस्फाई हुई, एंड मेरे को अपने अंदर कॉन्फिडेंस मिला कि मैंने अपने फैमिली बिजनेस से कुछ एक अलग भी स्टैंड किया है, जिसकी पहचान मेरे फैमिली नेम से नहीं है, मेरे नाम से है। राइट राइट। तो जैसे आपका शोरूम सर जी रंजीत एवेन्यू में है, वो अशोकी कुलचे के पास है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रंजीत एवेन्यू में शोरूम है, तो मतलब लोगों को डर नहीं लगता है, मतलब यहाँ लोग ऐसे सोचते होंगे यार बड़ा महंगा होगा, तो क्या रेंज आप ऑफर करते हो अपने शोरूम में? सर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमारे पास रेंज जो है, लाइक हम हर तरह की पब्लिक को, ऑडियंस को हम केटर करते हैं। वी हैव द स्टार्टिंग, इफ वी टॉक अबाउट द फैब्रिक्स, तो वी स्टार्ट आवर रेंज फ्रॉम यू कैन से 300 रुपीज़ पर मीटर and goes up to 1000, 2000, and I told you earlier also that we are working with many international and Indian designers whose range goes up to even 10,000 rupees per meter. But the range is not like any constraint or barrier in our showroom. We give the delivery according to the customer's taste and his pocket. That's great. सो सर इसी से मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना रखते हो, तो हाउ डू यू इंश्योर द क्वालिटी टू द कस्टमर्स? हाउ यू सिलेक्ट योर मटेरियल, ऑन व्हाट बेसिस, एंड व्हाट इज योर यूएसपी? Okay, great. So, ma'am, first of all, like whenever we get associated with any new company or any new agency, so ऐसा नहीं है कि हमने उनका मटेरियल रख दिया और जस्ट उसको सेलिंग शुरू कर दी। हम उसके पीछे एक प्रॉपर R&D करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर को R&D का कीड़ा होता है, तो हम उसकी R&D करते हैं। हम उसको प्रोडक्ट को ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं इसको अपने घर पे लगाऊं तो ये इसके क्या प्रोज और कॉन्स होंगे। तो अगर हम कोई 300 रुपये मीटर का फैब्रिक, या लेटेस्ट से कोई वॉलपेपर स्टार्टिंग रेंज है 1200, 1500 और मे बी 2000, तो प्राइस का मतलब ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी कम है या कुछ है। द प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेम और फेम ऑफ द डिज़ाइनर बिहाइंड दैट डिज़ाइन। तो क्वालिटी आपको बेस्ट ही मिलेगी। ओके। और जितना ये जैसे इंडस्ट्री ट्रेंड होते हैं, मतलब अनदर न्यू थिंग इज कमिंग एवरी डे, तो आप कैसे अप टू डेट रहते हो इंडस्ट्री ट्रेंड्स के साथ? हाँ बिल्कुल सर। तो आपको पता ही है, तो अभी बहुत हम एक फास्ट एरा में जी रहे हैं इस टाइम पे, तो इसके अंदर हमें रेगुलरली अपडेशन और इनोवेशन तो करनी पड़ेगी, जो एक हमारी वन ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ BNI भी है। तो उसके लिए हम जाते रहते हैं। आई गो अटेंड एग्जीबिशंस जहाँ भी लगती हैं, हमारी साल में 2-3 बार एग्जीबिशंस लगती हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ डिज़ाइनर्स को देखते हैं। और सेकेंडली आजकल थोड़ा टाइम से स्मार्ट वर्किंग का टाइम हो गया है, हार्ड वर्किंग कम हो गई है, स्मार्ट वर्किंग हो गई है। तो एग्जीबिशंस में ना भी जाके आजकल आप अगर रात को लाइक हफ्ते में आप 1 घंटा यूट्यूब पे और मे बी इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस को आप देखोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो करते रहते हैं R&D। जैसे आपने बोला आपने BNI बीच में एक पॉइंट आउट करा, तो आपको किसने बताया BNI के बारे में? व्हाट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन व्हाट इंस्पायर्स यू टू गेट इनटू BNI? वेरी ग्रेट क्वेश्चन। सो BNI, मैंने BNI के बारे में सुना अराउंड 2020, जबकि पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर क्रिएटर्स वाज अबाउट टू लॉन्च इन अमृतसर। सो सुना था मैंने। तो वन डे फ्रेंड ऑफ माइन मिस्टर नीतीश महाजन, हु इज़ ऑल्सो द BNI मेंबर, तो उसका मुझे कॉल आया लाइक इवनिंग में कि आज रात को आप देखो किसी से मिलवाना है मुझे। ठीक है। तो हम 5-6 लोग कहीं रेस्टोरेंट में बैठ गए और
वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मिला वन ऑफ आर ईडी मिस्टर अखिलेश होरा। तो हम सब 4 दोस्त थे, बीच में एक अननोन फेस फर्स्ट टाइम। तो वो जैसे सोच होती है कि भाई चलो आज इनके साथ हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। तो बट उसके अंदर काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुई हमारी, जिसके अंदर उन्होंने मुझे, अखिलेश जी ने मुझे एजुकेट किया BNI प्रोडक्ट के बारे में। तो इन द वेरी सेम मीटिंग आई डिसाइडेड टू जॉइन द BNI एंड दिस इज हाउ माय जर्नी बिगैन। And how this, after joining, what changes do you think you have incorporated? Okay. या को प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ में BNI ने कैसे आपकी हेल्प करी? डेफिनेटली BNI ने मुझे मेरी सेल्फ ग्रूमिंग में, मेरे काम करने के तरीके में मुझे बहुत हेल्प करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मुझे रेफरल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हमें यूज़ करना है, अपने रेफरल पार्टनर्स को कैसे बिजनेस देना है, वो मुझे इस BNI ने सिखाया। तो जब हमारा चैप्टर लॉन्च हुआ उसके अंदर आई गॉट न्यू 35 रेफरल पार्टनर्स। तो वो फिर, लेकिन उसको ये रेफरल बिजनेस की जो मेरी नॉलेज थी, इसको मैंने सिर्फ BNI के मेंबर्स तक नहीं सीमित रखा। फिर मैंने उसको धीरे धीरे अपने नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में भी उसको इम्प्लीमेंट किया। तो जब अब मेरे पास कोई भी कस्टमर अगर आता है तो इवन ही इज़ नॉट माई BNI मेंबर और ही इज़ नॉट बीइंग रेफर्ड बाय एनी ऑफ माई BNI मेंबर, तो मैं उसमें देखता हूँ कि इसका प्रोफेशन कौन सा है। तो सेम प्रोफेशन का अगर मेरा कोई फ्रेंड और मेरे रिलेटिव्स है तो मैं फिर वो रेफरल बिजनेस को उसमें यूज करता हूँ। You have learned lot of things from BNI. Yeah, sure, very much. Very good. And how do you see the competition big? Like market is very competitive, right? So how you stay ahead of your competition? देखिए डॉक्टर विक्रम, कंपटीशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक हमारा बिलीफ, पुराना बिलीफ, प्रिमिटिव सोच है कि जो लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत हो गया हमारी मार्केट में, सेल्स नहीं हो रही हैं, अगर सेल्स हो रही हैं तो प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप मुझे बात बताइए, गाय दूध देती है? यस और नो? देती है। नहीं, गाय दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। ये हमारी पुरानी सोच है, जिसको हमारा पुराना जो स्ट्रक्चर है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। जो हमारा काम करने का तरीका है हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। कुछ करेंगे तो सफलता मिलेगी, होने से सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है ना? तो वो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि डर के आगे जीत है। नहीं, जीत नहीं है, पहले दर्द है। दर्द से सीखिए तो जीत है। सही गल है। डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे जीत। दर्द से कुछ सीखे तो जीत है। जैसे कि आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि अपनी चादर देख के पैर फैलाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नई चादर लाओ, डबल बेड की चादर लाओ, मैजेस्टिक होम्स जाओ, अपनी सोच को बढ़ाओ, अपना विजन बढ़ाओ। राइट। सो सर, आपके अकॉर्डिंग इंडिया में कितना पोटेंशियल है फॉर न्यू बडिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? उनको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस में आना चाहिए? मैम, अगर जॉब और बिजनेस में से ऑप्ट करने की आएगी तो बड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये बड़ा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली अगर मैं बोलूँगा तो आई डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द बिजनेस। ओके। बिकॉज मैंने कहीं सुना था कि जॉब कैन गिव यू लिविंग बट बिजनेस कैन गिव यू लाइफस्टाइल। सो मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ डेफिनेटली वो 9 to 5 के सर्कल में आप एक असाइन टास्क कर सकते हैं। बट अगर आप बिजनेस स्टैंड करेंगे, अपना एम्पायर आपने खुद बिल्डअप करने की सोची है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने, रोज़ नई सिचुएशंस हैं, रोज़ नई चुनौतियाँ हैं, और जब उसमें से आप निकल के आओगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के आओगे। राइट। तो इसी से एक बात निकल के आई है, इफ एनी गिवन सिनेरियो, जंगल में से आप कौन सा एनिमल सेलेक्ट करोगे एंड क्यों? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डॉक्टर विक्रम। मैं डेफिनेटली लायन को एडमायर करता हूँ, और मेरा आंसर भी शेर ही होगा। बट शेर भी 2 तरह के हैं, एक जंगल का और एक सर्कस का। तो मैं बात करूँगा जंगल के शेर की, क्योंकि सर्कस का शेर हमेशा वो कंफर्टेबल सिचुएशन में है, उसको अपने आप खाना मिलेगा। लेकिन जो जंगल का शेर है वो हमेशा हंट पे है, वो अनकंफर्टेबल रहेगा तो उसको खाना मिलेगा। सो कहने का मतलब ये है कि आज अगर आप कंफर्टेबल रहोगे तो आपकी आने वाली ज़िंदगी अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन आज अगर आप अनकंफर्टेबल जी लोगे तो
आपका आने वाला जो भविष्य है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। एंड इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कुर्बान करके आने वाली ज़िंदगी निर्माण कर लो, या फिर आज निर्माण करके आने वाली ज़िंदगी कुर्बान कर लो। क्या बात है, वेरी वेल सेड। So this brings me to the last question of this session. Do you work with architects and interior designers? Definitely, sir. The architects, builders, and homemakers, they are the backbone of our business. So we love to work with them, and also हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ नया रोज़ लाते रहें। मेरा एक ये विज़न भी है अपने बिजनेस को लेके कि मैंने देखा है कि many of the premium clients or architects, they need to travel to the metro cities like Delhi or Bombay for the outsourcing of the different kind of materials which are not available in Amritsar or Punjab. So this is my vision, to bring all that kind of stuff under one roof, and for which I am thriving every day, and hope so I'll succeed one day. I would like to add one thing more, विक्रम सर। मैंने सजल जी के साथ पहले भी कम्युनिकेट करा हुआ है। सजल जी के साथ मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, एंड कहना पड़ेगा ही हैज़ वर्क वेरी पैशनेटली देयर। इन्होंने बड़े अच्छे डिज़ाइन के साथ वहाँ पे मतलब बड़ा अच्छा कस्टमाइज़ करके इन्होंने सोफ़ास वगैरह दिए थे। वी हैड फर्नीचर ओवर देयर। तो कहना पड़ेगा कि जब ये कस्टमाइज़ भी करते हैं, मतलब इनके पास सिर्फ रेडी टू सेल मटेरियल नहीं है, दे ऑल्सो कस्टमाइज। They also do customization themselves. Thank you Sahaj ma'am for appreciation. And I guess Dr. Bikram is also one of the yes. old clients. I am your happy customer जो हमने अभी नई ब्रांच ओपन करी है। I think one of the most luxury clinic, dental clinic in अमृतसर, और वो सारा फर्निशिंग का प्रोडक्ट भी आपसे ही है। In fact, and everyone is asking कहाँ से कराया। Thanks to both of you for giving me the chance, and I hope मैं आगे भी इसी तरह से आपको सर्व करता रहूं। बिल्कुल जी। So what is the mantra of your life? Mantra of my life is that the single mantra of my life is that we should not worry about the failures. We should about the chances which we miss when we didn't try. Right. Great. So सजल जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने कभी हमेशा यूनिक मतलब डिज़ाइंस बनाए हैं या फंक्शनल और बोथ? मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि हम बहुत ही एक पर्सनलाइजेशन एंड कंसेप्चुअल सेलिंग में हम बिलीव करते हैं। तो जब व्हेनेवर हमारे पास एक नया क्लाइंट आता है तो हम उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ही हम उसको एडवाइस करते हैं। अगर हमें लगता है कि जो क्लाइंट है वो बहुत डायनेमिक है तो वी प्रेफर कि वो बहुत वाइब्रेंट और ब्रिलियंट कलर्स के साथ ऑप्ट करें, और अगर एक सूदिंग पर्सनालिटी है तो डेफिनेटली हम उनको एडवाइस करेंगे कि वो सटल कलर्स और चेक्स के साथ जाए। ओके, व्हाट इज योर ड्रीम इन लाइफ? मैंने ड्रीम आपको बताई है कि मैं एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल फ्लैगशिप स्टोर अमृतसर में बनाना चाहता हूँ। तो वैसे तो मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बट मैंने उनको अपने गोल्स को लिख के रखा हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि जो शेर है उसका लिखा हुआ रहता है गोल, बकरियों का नहीं लिखा रहता है। तो आप रोड पे जाओ, बकरियां आएंगी तो लोग हॉर्न मारेंगे, बकरी इधर उधर भागेगी, लेकिन शेर जा रहा है, बजाओ हॉर्न, बजाओ, कोई हॉर्न नहीं मारेगा, क्योंकि जिसका लिखा हुआ गोल रहता है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। So can you suggest 3 tips on formation of team? Team building is one of the most difficult task in this today's era. So इसके अंदर जो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ वो ये है, सबसे पहले कि पेशेंस लिसनिंग टू आवर टीम मेंबर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो है सीनियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और जो बॉस है वो जो बोल रहा है वही सही है। तो ऐसा भी हो सकता है कभी जो आपकी टीम आपको बोले तो आपको फीडबैक लेना चाहिए, ठीक है। देन हम कोशिश करते रहते हैं, वी ट्राई कि रेगुलर बेसिस पे लाइक मंथली और क्वार्टरली हम कुछ ट्रेनिंग्स करते रहते हैं अपने ऑफिस में, शोरूम्स में, जिससे कि हमारी टीम को नई टेक्नोलॉजी एंड नए डिज़ाइंस के बारे में पता लगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द अगेन कोर वैल्यू ऑफ BNI, रिकॉग्निशन। तो टीम को बिल्ड करने में सबसे जो मेन पार्ट है मेरे हिसाब से वो रिकॉग्निशन है। दैट रिकॉग्निशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड्स, incentives, testimonial types, something. So what is the business potential in India? Business potential in India, I guess, if we talk about the last 10 years, so as our Prime Minister says कि we are going to be the 5 trillion economy.
तो मेरे को लगता है कि बहुत इसमें अभी हमारी मार्केट बहुत एक वर्जिन मार्केट है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे बेटर यूएसपी है हमारी 140 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है। तो जैसे कि कोविड के दिनों में आपने सुना होगा कि वो कंट्री को सेटबैक आया, उसको 2 साल लगे रिकवर करने में, बट इंडिया इकोनॉमी जो है वो 2 महीने में रिकवर कर गई थी, क्योंकि जो हमारा एसेट है हमारी पॉपुलेशन, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जैक्टली वही है। So, sir, do you believe that furniture has the power to define the spaces or to transform spaces? डेफिनेटली मैम, जो एक फर्नीचर का एक सिंगल पीस भी है, जो चेयर भी है किसी के ऑफिस में या किसी के घर पे, वो उसकी पर्सनालिटी, उसके पर्सोना को ही डिपिक्ट करती है। तो फर्नीचर इज डेफिनेटली एक ग्रेट पार्ट टू प्ले इन द ओवरऑल और ऑफ द प्लेस। Right. So I think this brings me to the end of this session. Thank you so much, Sajid, for coming, for your time. Any closing comments from your side? Thank you, Dr. Bikram and Sahaj ma'am, once again for giving me the opportunity and having me here today. So Thank you, sir. I will leave you with the one mantra, that is networking is very important for all of us, because कहते हैं कि a person is an average of the 5 person who you spend the most of time with. So, or you can say कि opposite of networking is not working. So I suggest all my audience to do maximum networking, and if possible they can join the platform which is being available in Amritsar in the form of BNI. Thank you. Right. And thank you, Architect Sahaj, for accompanying me. It was good to have you with us. Thank you, Bikram sir. I feel immense pleasure to interview Mr. Sajal Gupta, and I'm thankful to the BNI also to give me this opportunity. Thank you, sir. Thank you, Ji, and thank you so much, guys, for watching this video. If you find this video useful, do like it, share it, subscribe to our channels, and share it with someone who may need it. And in the end, I would like to thank Mr. Mukesh Mehra from Mahi Studios, जिनके स्टूडियो में हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. Thank you so much, guys. Thank you, Sajal ji.